Hello dear students, I am Assistant Professor Rushali Ahir, and in our today's lecture of Microbiology Part 1st, we are going to learn about the bacterial cytology. Now, here the cytology means the study of cell. Cyst means cell and logy means study. The branch which deals with the study of cell is known as cytology. In our today's lecture, we are going to learn about the bacterial cell, in which we are going to see the different size, shape and arrangement of the bacterial cell. Means बैक्टीरिया की साइज कैसी होती है, बैक्टीरिया का शेप कैसा होता है, या फिर बैक्टीरिया की जो अरेंजमेंट है वो सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं या फिर क्लस्टर्स ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं. दैट वी आर गोइंग टू स्टडी वन बाय वन. नाउ व्हेन वी डील अबाउट बैक्टीरिया, द बैक्टीरिया आर नथिंग बट प्रोकैरियोटिक unicellular microorganisms which lack the chlorophyll pigment, and the cell structure is simpler than the other organisms as it is a prokaryotic cell. Its cellular constituents or the cellular nature is simple as compared to the other organisms, and there is no nucleus or membrane bound organelles. Just due to the presence of rigid cell wall, bacteria maintains a definite shape, though they vary as shape, size and structure. मतलब बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो बैक्टीरिया की सेल वॉल बहुत रिजिड होती है, टफ होती है. इसकी वजह से बैक्टीरिया को स्पेसिफिक शेप मिलता है और उसका स्ट्रक्चर, उसकी साइज मेंटेन रहती है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके, नाउ व्हेन as we all know that bacteria or the microorganisms are the microscopic organisms which we cannot see with our naked eyes. So for observation of such bacterial cell we use generally light microscope or compound microscope, and whenever we view under light microscope, most of the bacteria appears in the variations of three major shapes, which is your rod shaped or spherical shape or spiral shape. In fact, the structure of bacteria has two aspects of arrangement and shape. मतलब उनकी अरेंजमेंट और उनके शेप के अनुसार उनको दो ग्रुप्स में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है. Now how does this arrangement is seen, that also we will see further. Here you can see that there are different number of different types of bacteria which varies in their size and shape, like 0.5 to 1 micrometer. Then their arrangement and shape is also of different types, like spherical, straight rod or helical. First we will study the size of bacterial cell. Now the average diameter of spherical bacteria is around 0.2 to 2 micrometer. मतलब बैक्टीरिया की जो एवरेज साइज होती है वो वैरी होती है फ्रॉम 0.2 to 2 micrometer. For the spherical shaped bacteria and for rod shaped or filamentous bacteria, their length is count, and the length varies from 1 to 10 micrometer and diameter is about 0.25 to 1 micrometer. अभी जो स्पेरिकल होते हैं वो सर्कुलर शेप में होते हैं, इसलिए हम उनकी डायमीटर काउंट करते हैं, एंड दैट डायमीटर जो वैरी होती है वो 0.2 से लेकर
2 माइक्रोमीटर तक उनकी साइज रेंज वैरी हो सकती है। रहा सवाल रॉड शेप्ड बैक्टीरिया का, तो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया का हम लेंथ काउंट करते हैं। इट मे बी ऑफ 1 माइक्रोमीटर, इट मे बी ऑफ 2 माइक्रोमीटर up till 10 micrometers depending on the type of microorganism. For example, if we will consider E. coli, अगर हम इशरिशिया कोलाई को लेते हैं तो इसका साइज रेंज वैरी होता है फ्रॉम 1.1 to 1.5 माइक्रोमीटर। अगर हम अनदर एग्जाम्पल ले तो लाइक Spirochetes, the length of spirochetes is around 500 micrometer in length. So, जैसे ही हम बैक्टीरिया बदलते जाएंगे उसका शेप और उसकी साइज भी क्या होती जाएंगी, चेंज होती जाएगी। नाउ हियर आर इन डायग्राम यू कैन सी द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू as well as light microscopic view of different types of cell. या एटम्स की, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, वायरसेस, बैक्टीरिया या फिर यूकैरियोटिक सेल होंगे, उनके साइज के अनुसार उनको क्या किया है, एक स्केल में डाला गया है। नाउ एज वी आर डीलिंग विद द बैक्टीरिया, हियर यू कैन सी देयर साइज रेंज is varied from 0.2 to 2 micrometer. Here you can see the bacterial cell and the size of these bacterial cell is comes under these 1.2 to 2 micrometer. Okay. Now few bacteria are much larger than the average eukaryotic cell. कुछ ऐसे टाइप के भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है जिनकी साइज यूकैरियोटिक सेल से भी बड़ी हो सकती है। यूकैरियोटिक सेल्स इंक्लूड प्लांट, टिपिकली प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल्स, जिनकी साइज होती है 10 to 50 माइक्रोमीटर्स। इससे भी बड़े साइज के कुछ बैक्टीरिया हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज शेप ऑफ बैक्टीरियल सेल। नाउ व्हेन वी डील विद द शेप ऑफ द बैक्टीरियल सेल, देयर आर 3 बेसिक बैक्टीरियल शेप्स लाइक कोकस। See here you can see the coccus shape, which is slightly spherical or circular. Then second type is your bacillus or rod shaped, and third type is your spiral or twisted form, which are known as spirochetes. However, there is one more type which is your pluromorphic bacteria, but these pluromorphic bacteria can assume or can get several shapes. मतलब कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अपना शेप और साइज चेंज कर सकते हैं, and such type of bacteria are known as pluromorphic bacteria. We will see the one by one these shapes when we deal with the coccus or spherical shaped bacteria. Now when a single bacteria is present, अगर एक अकेला बैक्टीरिया होगा तो हम उसे बोलते हैं कोकस शेप्ड। अगर बैक्टीरिया ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं then it is known as cocci. Okay, now these cocci are round cells, sometimes they are slightly flattened when they are adjacent to one another. अभी ये जो बैक्टीरिया होते हैं कोकाई शेप के, वो सर्कुलर शेप में प्रेजेंट होते हैं। अगर ये एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास होंगे तो उनका जो अपीयरेंस है वो स्लाइटली फ्लैट दिखता है। These coccus may be present in pairs
may be present in chains, may be present in the clusters. इनकी जो अरेंजमेंट है पेयर्स में या फिर क्लस्टर्स में या फिर चेन में, दैट वी विल लर्न फर्दर, बट नाउ you just need to understand that is your first shape is cocci shaped, which is spherical or round in shape. Second type is your bacillus rod. Now bacillus rod or bacilli are round shaped bacteria. okay, cocci कैसे थे हमारे, वो थे स्पेरिकल शेप्ड या फिर राउंड शेप्ड, और बैसिला कैसे है, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है. यहाँ आप डायग्राम में भी देख सकते हो, दे आर ऑब्जर्व जस्ट लाइक अ रॉड. जब ये सिंगल रॉड होता है तब हम उसे बैसिलस बुलाते हैं. अगर ये रॉड्स पेयर्स में या फिर ग्रुप में दिखाई देते हैं, देन दीज सेल्स आर नोन एज बैसिलाई. ओके, एंड द थर्ड टाइप इज योर स्पिरिला. स्पिरिला अगर वो ग्रुप में होंगे तो हम उसको स्पिरिला बोलते हैं. इफ इट इज प्रेजेंट इन सिंगल सेल देन इट इज नोन एज स्पिरुलम. नाउ दीज स्पिरुला और स्पिरुलम आर curved bacteria which can range from gently curved shape to the corkscrew like spiral. Many spirilla are rigid and capable of movement. A special group of spirilla is known as spirochetes, are long, slender and flexible. आप यहाँ डायग्राम में spirochetes ऑब्जर्व कर सकते हो. These spirochetes जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर जो है वो स्लाइटली फ्लेक्सिबल होता है, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है उनका. ये ट्विस्टेड होते हैं, एंड दीज ट्विस्टेड स्प्रिंग लाइक लॉन्ग स्लेंडर स्ट्रक्चर इज नोन एज स्पिरिला. ओके, सो दीज आर द 3 different shapes of bacterial cell. First one is your coccus, which is spherical shaped. Second one is your bacillus, which is rod shaped, and third one is your spiral, which is in twisted shape. Next type is your arrangement of the bacterial cell. Bacteria cell या फिर बैक्टीरिया का अरेंजमेंट कैसा है, वो सिंगली प्रेजेंट है या फिर ग्रुप में प्रेजेंट है, उसका शेप कैसा दिखाई देता है, इसके अनुसार उसका डिफरेंट टाइप्स में उनको डिवाइड किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी कंसिडर अबाउट द बैसिलाई, अगर हम रॉड शेप्ड बैक्टीरिया का स्टडी कर रहे हैं, देन these cylindrical or rod shaped bacteria which are known as bacilli उनकी जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट डिपेंड करती है on the development and characteristics feature of the daughter cell. Now first type of arrangement is your diplobacilli. These diplobacilli appears in the pairs. ये जो डिप्लोबैसिलाई मतलब अगर सिंगल सेल होगा तो वो सिंगल रॉड शेप्ड बैसिलाई हमें दिखाई देगा. 2 रॉड शेप्ड बैक्टीरिया जब साथ में आते हैं तो उनको हम बोलते हैं डिप्लोबैसिलाई. ओके, यहाँ आप डायग्राम में भी देख सकते हो. दीज हियर रेड कलर और ब्लू कलर 2 रॉड्स आर प्लेस्ड टुगेदर. यहाँ जो है
हम रेड कलर का और ब्लू कलर के जो दो रॉड्स है वो साथ में प्लेस किए गए हैं और सच टाइप ऑफ bacilli which appears in a pair are known as diplobacilli. For example, if we consider Bacillus cereus, they are present in a single rod form. On the other hand, some species of Klebsiella or Moraxella bovis are present in the diplobacilli form. मतलब यहाँ उनके दो रॉड्स क्या होते हैं, एक दूसरे को कनेक्टेड होते हैं. Then next type is your streptobacilli. Now the bacilli are arranged in chains as the cell divides in the one phase. जैसे ही सेल डिवाइड होता है तो डिवाइड होने के बाद एक एक बैसिलाई एक दूसरे को कनेक्ट होकर एक चेन फॉर्म करता है एंड दिस चेन ऑफ बैसिलाई इज नोन एज स्ट्रेप्टोबैसिलाई. यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ आपको रॉड्स की एक बड़ी चेन दिखाई देगी, रेड कलर में भी है और ब्लू कलर में भी है एंड दिस चेन ऑफ bacilli is known as streptobacilli and the example of streptobacilli is streptobacillus moniliformis. streptobacillus की जो भी species है they are present in the form of chains. Then the next type is your trichomes. ये जो ट्राइकोम्स होते हैं वो ट्राइकोम्स आर स्लाइटली सिमिलर टू द चेन लाइक स्ट्रक्चर. सिर्फ यहाँ उनका सरफेस एरिया कैसा होता है, सरफेस एरिया थोड़ा ज़्यादा होता है स्ट्रेप्टोबैसिलस से. देन देयर आर ऑल्सो डिफरेंट फॉर्म्स लाइक Cocobacilli. These Cocobacilli are so short and stumpy that they appear ovoid and they look like a coccus and bacillus. उनका शेप जो होता है वो इतना शॉर्ट होता है कि वो जस्ट लाइक ओवाइड एक जैसा उनका स्ट्रक्चर दिखता है. नेक्स्ट टाइप ऑफ अरेंजमेंट इन द bacilli is your palisade arrangement. Now what does this palisade arrangement mean? The bacilli bend at the point of division. मतलब जब bacilli की division होती है वो division के point पर वो bacilli क्या होता है, bend हो जाता है. bend होने के बाद उसकी cell division होती है resulting in the palisade arrangement resembling the picket fence and the angular pattern that look like a Chinese letter. मतलब जैसे चाइनीज लेटर दिखता है, some species like Corynebacterium diphtheria वो क्या होते हैं वैसे ही स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर उनका डेवलप होता है. वाइल डिवीजन टाइम बैक्टीरिया क्या होता है, फोल्ड होता है और एंगुलर शेप उसका डेवलप हो जाता है जस्ट लाइक एन एंगल एंड दिस एंगुलर शेप of bacilli is known as palisades. Okay, this was your first type of arrangement of bacilli in which we includes diplobacilli, streptobacilli, trichomes, then cocobacilli, palisades, etc. Next type is your cocci shaped. Now these cocci shaped bacteria are also arranged in different types like diplococci. आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, अगर वो सिंगल सेल होगा तो हमें कैसे दिखता है, इन कोकस, उसे हम कोकस बोलते हैं. अगर दो कोकस साथ में आते हैं, when two coccus comes together and forms a single structure, तो उसे हम क्या बोलते हैं,
डिप्लोकोकाई विच अकर्स इन अ पेयर. यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हो, दो कोकस क्या हो गए, साथ में आ गए, एंड दीज स्ट्रक्चर इज नोन एज डिप्लोकोकाई. देन द नेक्स्ट, यहाँ डिप्लोकोकाई का एग्जाम्पल हम क्या कौन सा दे सकते हैं, लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, देन नाइजीरिया गोनोरिया एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द डिप्लोकोकाई. Next type is your tetrad. Now these tetrads are the group of 4 cocci. जब 4 सर्कुलर या फिर स्पेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया साथ में आते हैं और वो सिंगल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं. When a group of 4 cocci comes together and form a single structure, that single structure is known as tetrad. And there are different types of organisms which are observed in the tetrad form. For example, Aerococcus, Pediococcus और Tetraginococcus. ओके, यहाँ कोकाई शेप है इसलिए उनका नाम भी वैसा ही दिया गया है. उनको बोला जाता है एरोकोकस, पेडिकोकस या फिर टेट्राजिनोकोकस. देन यहाँ आपका नेक्स्ट जो अरेंजमेंट है कोकाई शेप में, वो अरेंजमेंट है सार्सिना. नाउ दिस सार्सिना इज अ क्यूब लाइक स्ट्रक्चर. उनका शेप एक क्यूब के जैसे होता है, विच कंसिस्ट ऑफ 8 सेल्स. जब बैक्टीरिया के 8 सेल्स साथ में आकर एक क्यूब जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज सार्सिना. एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया लाइक सार्सिना यूरेई और सार्सिना वेंट्रिकुलाई are the examples of such structures or are the examples of Sarsina arrangement. Then your 5th type of arrangement is streptococci. Now strept means chain. कोकाई की जो चेन फॉर्मेशन होती है, when different types of cocci are arranged in a single chain, that structure is known as streptococci. और streptococci के examples है Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalacti या फिर Streptococcus की कोई भी species जो होती है, that are included under the arrangement of streptococci. And the last arrangement in the cocci is your staphylococci. Now these, आप अगर यहाँ staphylococci का स्ट्रक्चर देखते हैं, these staphylococcus arrangement is just like grapes. ग्रेप्स का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, द सेम ग्रेप लाइक क्लस्टर्स ऑफ कोकाई शेप्ड बैक्टीरिया इज फॉर्म. मतलब डिफरेंट टाइप्स के कोकाई शेप्ड के बैक्टीरिया क्या होते हैं, एक साथ आ जाते हैं और ग्रेप्स का जो फाइनल स्ट्रक्चर बनता है, सेम लाइक ग्रेप्स अपना खुद का बैक्टीरियल सेल क्या बनाते हैं, एक क्लस्टर बनाते हैं, एंड दैट क्लस्टर इज नोन एज स्टैफाइलोकोकाई. दैट ये जो अरेंजमेंट होती है ग्रेप्स की जैसी बैक्टीरियल सेल की, उसको हम उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं स्टैफाइलोकोकाई. एंड द एग्जांपल ऑफ सच अरेंजमेंट इज स्टैफाइलोकोकस ऑरियस. यहाँ भी आप इस डायग्राम में भी डिफरेंट टाइप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स शेप्स देख सकते हो ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया. नाउ सी, सम बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द पेयर्स like Diplococcus. Here bacteria is present in the chain. यहाँ 4 बैक्टीरिया एक साथ प्रेजेंट है तो उनको हम बोलते हैं टेट्राड. Now your grape like structure also you can see. These grape like structure is known as Staphylococcus. Then the 8 shell packet like structure is formed which is known as your
Sarcina, and single cell is known as कोकाई. यहाँ बैसिलस का भी आप देख सकते हो पेयर्स में, मतलब डिप्लोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, ऐसे डिफरेंट टाइप्स के पैलिसेड्स. नाउ सी हियर यू कैन सी द डायग्राम ऑफ पैलिसेड्स. पैलिसेड्स क्या थे? जब बैसिला बेंड होता है, बेंड होने के बाद उसका एंगुलर स्ट्रक्चर डेवलप होता है. दैट एंगुलर स्ट्रक्चर आर प्लेस्ड साइड बाय साइड, एक दूसरे के साइड्स में प्लेस किए जाते हैं, एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज पैलिसेड्स. तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के अरेंजमेंट आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो. These was all about the bacterial cell size, shape and arrangement. बैक्टीरियल सेल की साइज वैरी होती है फ्रॉम 0.2 to 2 माइक्रोमीटर. उसके 3 टाइप्स के डिफरेंट शेप्स होते हैं. वन इज योर कोकाई शेप्ड विच इज स्पेरिकल. Second one is your bacillus shape which is rod shaped bacteria, and third type is your spiral shaped, जो spring like structure होता है उनका. और ये जो shapes होते हैं उस shapes के arrangement के basis पर बैक्टीरिया को अलग अलग ग्रुप में क्या किया जाता है, प्लेस किया जाता है. Thank you all of you.